Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to this video. Today we are going to understand the recruitment cycle of NABARD. So we'll understand what is the time duration from notification till your joining. Now the purpose of bringing this video is that there are many students who are targeting multiple examination. So it's very important for them to know कि what they can expect अगर वो NABARD के साथ साथ किसी और examination को target कर रहे हैं. So I see that there are many students who target now UPSC along with NABARD, who are targeting banking examination along with the NABARD examination, and sometimes the cycle can overlap. So it's very important for you to understand what is the exact examination cycle for NABARD grade A examination, plus how much time it takes from notification till your recruitment or till your joining, right? So that is what we are going to discuss in this particular video. But before I start, I would like to tell you about our initiative. So EduTap has launched a guidebook for you. If you are a complete beginner in NABARD and you want set of previous year questions, you want strategy, you want decoded syllabus for the preparation of NABARD grade A examination, you can get it all through this guidebook, and that too for free. If you want to download this guidebook, you will have to go to the description box, click on the link, register yourself and download this guidebook for yourself. So with that, let's start our video and let's first understand what all we are going to discuss in this video. So see students, first we are going to see ki what when can you expect the notification for NABARD grade A 2026 examination, ताकि उसी अकॉर्डिंग यू कैन सी कि क्या रिक्रूटमेंट साइकिल हो सकती है. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी बेसिकली एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट. वी कैन नॉट टेल यू द एग्जैक्ट नोटिफिकेशन डेट बिकॉज इट इज नॉट आउट येट. सो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो 2026 के लिए, कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. ओके, देन आई एम गोइंग टू टेल यू कि कितना गैप रहता है एक्चुअली बिटवीन योर नोटिफिकेशन टू फेज 1. तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि नोटिफिकेशन से फेज 1 के बीच में आपके पास कितना टाइम रहने वाला है एंड आप उस टाइम ड्यूरेशन को कैसे मैनेज करने वाले हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फेज 1 एग्जामिनेशन. देन आई एम गोइंग टू टेल यू द टाइम गैप बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2. तो फेज 1 और फेज 2 के बीच में क्या टाइम गैप रहने वाला है या रहता है यूजुअली, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट. देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेड गैप बिटवीन फेज 2 एंड इंटरव्यू. So we know NABARD has phase 1, phase 2 and interview. So after phase 2, you are called for interview. So कितना time लगता है, that is what I am going to tell you here. And then when can you expect the final result of NABARD grade A 2026? And then आपकी joining कब तक हो जाती है, right? So students, that is what we are going to discuss in this particular video. So let's discuss each point one by one. पहला, let's discuss about when can you expect the notification date of NABARD grade A 2026 exam. Okay, so students, usual timing of NABARD grade A notification is end of July till August or mid of August, I would say, right? But till now we know that NABARD notification is not out. So कभी कभी ऐसा भी होता है कि notification delay हो जाता है, right? तो अभी तक अगर notification नहीं आया, that means notification थोड़ा सा अब delay हो सकता है. So आप ये लेके चलिए कि अभी NABARD 2026 recruitment cycle के लिए आप second week of August till end of August, ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ अगस्त से लेके एंड ऑफ अगस्त के बीच में नोटिफिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. या फिर अगर एंड ऑफ अगस्त, दैट मीन्स स्टार्टिंग ऑफ सितंबर कैन बी देयर. तो आप ये लेके चलो कि अभी आपके पास टाइम है, तो आप अगस्त के एंड तक नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड अगर नोटिफिकेशन आपका अगस्त में आता है, देन आपका जो फेज 1 है वो एक महीने बाद होगा, राइट? सो कमिंग टू द पॉइंट कि एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाली है NABARD नोटिफिकेशन 2026 के लिए. सो यू कैन टेक इट लाइक कि अगस्त एंड या सितंबर स्टार्टिंग में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, राइट? Again, I am repeating it. There is no fixed timing of these examination notification release कि कोई fixed time नहीं है कि हाँ मैंने बोल दिया है एंड अगस्त में आएगा या स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में आएगा तो तभी आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन सी अभी भी नोटिफिकेशन डिले हो गया. एक्सपेक्टेशन था कि जुलाई एंड तक आ जाए, बट अभी तक नहीं आया है, राइट? सो ये जो रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन है इसमें नोटिफिकेशन कभी भी आ सकते हैं, बट एज पर पास्ट ट्रेंड उस बेसिस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यस, टाइमिंग कैन बी एंड ऑफ अगस्त और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, राइट? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है. तो हाउ मच टाइम गैप इज यूजुअली देयर बिटवीन नोटिफिकेशन एंड फेज 1. तो फेज 1 और नोटिफिकेशन में कितना टाइम गैप रहता है? सो स्टूडेंट्स, NABARD ग्रेड ए एग्जामिनेशन जो अभी तक हुए हैं, नोटिफिकेशन से लेके फेज 1 तक हमने देखा है आपके पास 30 to 40 डेज होते हैं
टू प्रिपेयर फॉर योर फेज 1. ठीक है, सो नोटिफिकेशन रिलीज होता है. बेसिकली द प्रोसेस इज दैट फर्स्ट नोटिफिकेशन इज रिलीज इन न्यूज़पेपर. ओके, नेक्स्ट डे यू विल सी नोटिफिकेशन इन द वेबसाइट. ओके, उसी के दूसरे दिन आपको वेबसाइट में नोटिफिकेशन दिखता है. देन आफ्टर और जब नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसी के बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाता है एंड यू गेट 20 to 25 days फॉर रजिस्ट्रेशन. देन द रजिस्ट्रेशन क्लोजेस. ओके, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट्स एंड रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के 10 दिन बाद 10 to 15 days आफ्टर दैट यू कैन सी कि आपका एडमिट कार्ड आ जाता है. ओके, एडमिट कार्ड आ जाता है ना. आफ्टर 1 week ऑफ एडमिट कार्ड योर फेज 1 विल बी कंडक्टेड. सो और इन एवरेज इफ यू सी दैट 30 to 40 days लग जाते हैं आपके नोटिफिकेशन से फेज 1 एग्जाम होने में. ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, सो प्लीज सी दैट आपके पास काफ़ी कम टाइम रहेगा टू कवर ऑल योर सब्जेक्ट फॉर द फेज 1. तो आप अभी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. राइट, काफ़ी बच्चे होते हैं जो अभी किसी और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि चलो नोटिफिकेशन के बाद देख लेंगे. तो टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं रहता है. ऐसा नहीं कि आपके पास 2 महीने हैं या 3 महीने हैं नोटिफिकेशन के बाद. सो और ये जो टाइमिंग है ये चेंज होती है. इट कैन बी 30 days, इट कैन बी 40 days एंड समटाइम्स अगर टाइम ज़्यादा हो जाता है तो 40-45 days भी हो सकते हैं. ठीक है, बट आप लेके चलो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 days का टाइम है मिनिमम फ्रॉम नोटिफिकेशन टिल फेज 1. तो उतना ही टाइम रहता है. सो ट्राई टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन बिफोर रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन. क्लियर? सो नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट. ठीक है, व्हाट शुड बी द expected or the time gap between phase 1 and phase 2. So students, once your phase 1 is done, right, if see September में अगर आपका या September starting में, like for example 1st September को आपका notification release हुआ, right, तो आप first week of October में आप expect कर सकते हो कि आपका phase 1 exam हो जाएगा. right, now phase 1 के बाद students after phase 1 it takes 20 to 25 days for the release of फेज 2 रिजल्ट. ओके, फेज 2 का रिजल्ट 20-25 डेज के बाद आता है एंड आफ्टर फेज 2 रिजल्ट 10 to 15 डेज के बाद आपका जो फेज 2 है दैट इज कंडक्टेड. राइट, सो अगेन द टाइम गैप बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2 दैट is 25 to 30 days you can say or 30 to 35 days you can say. right, तो देखो अगेन एग्जैक्ट टाइमिंग we cannot say but it's based on कि क्या एवरेज गैप देखा गया है पास्ट ईयर रिक्रूटमेंट साइकिल के बेसिस पे. सो फेज 1 फेज 2 में आपका 25 से 30 या 30 से 35 डेज का आपका डिफरेंस रहता है. ठीक है, तो इतना टाइम मिलेगा आपको फेज 1 से फेज 2 की प्रिपरेशन के लिए. और फेज 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग होता है, आपको सारा करंट अफेयर रिवाइज करना होता है, ARD रिवाइज करना होता है. तो अगेन सी दैट आप उस टाइम पे फेज 2 की प्रिपरेशन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फेज 2 एज वेल बिकॉज फेज 2 इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपको ज़्यादा स्कोर करना है. राइट, चलो तो ये तो रही टाइम गैप बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2 की बात. नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि अब फेज 2 हो गया, फेज 2 के बाद इंटरव्यू तक क्या एक्सपेक्टेड गैप हो सकता है. राइट, सो स्टूडेंट्स फेज 2 के बाद यू कैन एक्सपेक्ट अगेन 20 to 25 days ऑफ गैप फ्रॉम फेज 2 एंड इंटरव्यू, क्योंकि फेज 2 के बाद आफ्टर 20 days मैक्स आपका फेज 2 का रिजल्ट आ जाएगा. राइट, देन रिजल्ट के बाद दे विल टेक अराउंड 10 to 15 days टू कॉल फॉर इंटरव्यू. राइट, सो you can expect कि again 30 to 35 days लगेंगे from phase 2 to interview. Right, so this is the expected gap between phase 2 and interview. Coming to the next, that when can you expect your final result. So students, once your interview is done, so after 10 to 15 days or max 20 days आपका results will be announced. Okay, once your interview is conducted, then after 15 to 20 days or 10 to 15 days you will see आपका result release हो जाएगा by the NABARD organization. Right, so this is basically the final, when can you expect the final result. So students, if अगर आपकी recruitment cycle सितंबर से स्टार्ट होती है कि सितंबर में नोटिफिकेशन आया, देन योर फेज 1 विल बी इन अक्टूबर, योर फेज 2 विल बी इन नवंबर, योर इंटरव्यू विल बी इन दिसंबर. तो आप नाबार्ड ग्रेड 2026 का रिजल्ट जनवरी 2027 में एक्सपेक्ट कर सकते हो. ओके, सो ये पूरा साइकिल को होने में आप देख सकते हो कम से कम 4 से 5 महीने लग जाते हैं. ठीक है, मैक्स टू मैक्स 6 महीने का भी साइकिल हो सकता है. क्लियर?
सो यस, दिस इज द टाइमिंग। अगर आपका सितंबर में नोटिफिकेशन आता है, बेस्ड ऑन कि हमारे जो प्रेडिक्शन है कि अगर सितंबर में नोटिफिकेशन आए तो आपका जनवरी तक आपका फाइनल रिजल्ट रिलीज हो जाएगा एंड बाय फरवरी आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, राइट। सो स्टूडेंट्स, यस, व्हेन यू कैन यू एक्सपेक्ट देन ज्वाइनिंग? अगर जनवरी में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो सून आफ्टर दैट इन फरवरी यू कैन एक्सपेक्ट कि ज्वाइनिंग हो जाएगी फॉर 2026 रिक्रूटमेंट साइकिल, राइट। सो अगर हम इस पूरे साइकिल को समझे स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्या होता है कि आपका नोटिफिकेशन रिलीज होता है न्यूज़पेपर में, देन आपका नोटिफिकेशन रिलीज होता है वेबसाइट में, देन एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं, राइट। आफ्टर द notification is released on website, you will get time for registration also, और registration के बाद आपका एडमिट कार्ड रिलीज होंगे। एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद आपकी फेज 1 की डेट होगी, उसमें आपका फेज 1 कंडक्ट किया जाएगा एंड देन फेज 1 के बाद आपका फेज 1 का रिजल्ट रिलीज होगा। फेज 1 के रिजल्ट रिलीज होने के बाद यू विल बी कॉल्ड फॉर फेज 2 एग्जाम एंड देन फेज 2 रिजल्ट्स विल बी आउट, ओके। आफ्टर फेज 2 रिजल्ट्स यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू प्रोसेस, ओके। इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी एंड देन द फाइनल रिजल्ट विल बी देयर, and after the final year result you will be called for the training and joining, right? So this is the complete recruitment cycle of NABARD grade A examination. So students, I hope this has helped you to understand कि क्या recruitment process होता है NABARD grade A examination का, from notification release till joining. So yeah, I hope it was helpful, and if you are thinking to prepare for this examination और आप हमारे course देखना चाहते हैं, so I wanted to tell you about our courses before I end this video. So students, we have multiple courses for NABARD grade A preparation. So what you'll have to do, you'll have to just visit our website, go to the courses, go to the NABARD grade A course, scroll down and you can see we have multiple courses, right? So students, अगर आपको डेमो लेना है कि हम एक्चुअली में कोर्स में प्रोवाइड क्या करते हैं, then we have a 2-day डेमो कोर्स। इसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हो, सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो दैट वी प्रोवाइड इन एक्चुअल कोर्स, बट here nothing is downloadable. You can just see the course for 2 days and after that you can decide whether you want to go for our course or not, right? Then we have gold course if you want the preparation for phase 1, phase 2 and interview, and if you're someone who feel like I'm comfortable with the non-merit section, I just need content for merit section of phase 1, phase 2 and interview, then you can purchase our silver course, right? So yeah, that's all. I hope the video was helpful for you. Thank you so much.